Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again and we are continuing analysis and interpretation of financial statement. In my last lecture itself, मैंने ये बताने की, समझाने की पूरी कोशिश की. फर्स्ट थिंग, आपको एनालाइज नहीं, इंटरप्रेट नहीं, आपको वर्टिकल समझना है. वर्टिकल का मतलब, बिकॉज फॉर द पास्ट 2 years 3 years आप जो बैलेंस शीट सॉल्व कर रहे थे, समझ रहे थे, वो था इस तरह. इस तरह का मतलब है हॉरिजॉन्टल. नाउ यू हैव टू डू इट इस तरह. इस तरह का मतलब है वर्टिकल. सो अज्यूमिंग यू हैव अटेंडेड द लास्ट 2 lectures 3 lectures, अगर नहीं अटेंड किया तो क्यों नहीं अटेंड किया, करना चाहिए आपको. तो आपको हमेशा एक लिंक मिल जाता है, एक आई कार्ड मिल जाता है टू गो बैक टू द प्रीवियस वन, ताकि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं. अदरवाइज प्लेलिस्ट में नॉर्मली सब सीक्वेंस में बराबर से अरेंज्ड होता है. आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ वर्टिकल बैलेंस शीट. इन दैट व्हाट आर द 2 मेन पार्ट्स, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन. सोर्सेज में मेन पार्ट क्या है? शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड फिक्टिशियस एसेट. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब वो एसेट जो झूठा एसेट है, नॉर्मली एसेट साइड पे दिखता है. ओके, देन बोरोड फंड्स. उसके बाद आई एक्सप्लेन कि एप्लीकेशन में क्या आना चाहिए. एसेट्स आते हैं नॉर्मली फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद में यू कम टू वर्किंग कैपिटल, जो काफ़ी, आई ऑलवेज से दिस, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है. ओके, करंट एसेट में क्विक, नॉन क्विक, करंट लाइबिलिटी में क्विक, नॉन क्विक. एंड द प्रॉब्लम इन टुडेज प्रॉब्लम इज नॉट सिंपल. अबाउ व्हाट यू सी, इट्स पास्ट TYB.com सम एडेप्टेड, थोड़े चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं. द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ M Limited, अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. व्हाट यू सी अबाउ इज नॉट अ बैलेंस शीट. When you have a balance sheet, मार्किंग करना उतना आसान हो जाता है. When you don't have a balance sheet, जैसे ऊपर, मार्किंग करना उतना मुश्किल हो जाएगा. So, अपन थोड़ा टाइम और ध्यान ज़्यादा देंगे in understanding the marking above. So, my request is, vertical format जो होता है ना, वो आपके सामने होना चाहिए. टेक्स्ट बुक का रख लो अपने सामने, टेक्स्ट बुक तो चाहिए आपको. ओके, एंड फिर उसको देखकर ये क्वेश्चन की मार्किंग आप आपके जहाँ पे क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में, आप वहाँ पे कर सकते हो. एग्जाम्पल पहला क्या है? कैश. नाउ यू कैंट से सर शेयर कैपिटल. नहीं, ऐसा नहीं है, वो लास्ट के 2 सम में था. कैश तो करंट एसेट है. क्विक,
तो मार्किंग वो करना पड़ेगा आपको. सो दिस इज नॉट इन द मोर इजियर स्टाइल, इट इज इन द बिट मोर ट्रिकी स्टाइल. ट्रिकी स्टाइल मैं ऐसा इम्पॉसिबल डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, बट ट्रिकी स्टाइल. हाँ, बिल रिसीवेबल, अब वो भी करंट एसेट है. डोंट सी मी सर वो उस तरफ क्या कर रहा है, अरे इधर ये उस तरफ कुछ नहीं है, ये एक लिस्ट है, उसमें एसेट भी है, लाइबिलिटी भी है, उसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, क्विक, नॉन क्विक, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, शेयर, एवरीथिंग इज मिक्स्ड. यू बेटर बी केयरफुल. क्रेडिटर, जब पहले तो बिल रिसीवेबल इट्स करंट एसेट क्विक, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी क्विक, जनरल रिजर्व कोई भी रिजर्व आए, रिजर्व एंड सरप्लस, प्लांट एंड मशीनरी ये वो मैं टच कर सकता हूँ, यस यस यस, टेंजिबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी बट नॉन क्विक. नाउ मेनी ऑफ यू वुड बी सर थोड़ा सिर के ऊपर जा रहा है क्योंकि आप फॉर्मेट नहीं देख रहे. व्हाट डू आई मीन बाय दैट, ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सामने रखो, कीप इट इन फ्रंट. मैं तो मेरे बच्चों को मतलब जो भी जिनको मैंने कोच किया है, ट्यूटर किया है, समझाया है, सिखाया है, आई ऑलवेज टेल देम व्हेन यू आर डूइंग मार्किंग्स, आप शॉर्ट फॉर्म में शेयर कैपिटल, रिजर्व, मिसलेनियस या फिक्टिशियस एसेट, बोरोड फंड, राइट इट ऑन अ पेपर. पूरा रामायण मत लिखो, बट शॉर्ट फॉर्म में लिखो. टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, क्विक, नॉन क्विक, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, and then keep in front and then think about the marking. Otherwise in a question which today you have in front of you, marking definitely मुश्किल हो जाएगी. ओके, तो फॉर्मेट सामने होना चाहिए. P&L अकाउंट क्रेडिट, ये लास्ट टाइम मैंने भाषण दिया कि क्रेडिट मतलब इनकम, मतलब रिजर्व. अगर ये डेबिट में आए तो ये लॉस है, तो ये बन जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मतलब फिक्टिशियस एसेट. नॉट टुडे. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है. प्रोविजन फॉर टैक्स, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, ये सरकार से आपने वादा किया है कि सरकार टेंशन मत लो, हम आपको जीएसटी देंगे. सो इट इज अ करंट लाइबिलिटी क्विक. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ, दिस इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस. क्योंकि ना अगर आप ध्यान दो तो वो फॉर्मेट में लिखा है फिक्टिशियस एसेट के आगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ, तो मतलब उसकी परिभाषा, मतलब मीनिंग सेम. So we have marked one side, left side, not liability, left side. Above land and building, हम तो टच कर सकते हैं धरती को, तो tangible. स्टॉक, ये स्टॉक मतलब इन्वेंटरी, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, तो इट इज करंट एसेट बट नॉन क्विक. प्रीपेड, वो भी करंट एसेट है, नॉन क्विक. कैसे, क्योंकि प्रीपेड का ना पैसा वापस नहीं मिलता. आप अगर प्रीपेड जियो का रिचार्ज कराओ तो जियो आपको डेटा देगा, सर्विस देगा, पैसे थोड़ी देगा. तो नॉन क्विक. डेटर क्विक है, करंट एसेट क्विक. डिबेंचर तो लोन है, बोरोड फंड, तो मतलब तितर बिथर सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है. ओके, मैं आई थिंक आई वाज टीचिंग ओसी फॉर 12th स्टैंडर्ड, इन दैट देयर वाज अ रूल, ओके, कि ऑर्डर, देयर हैज टू बी ऑर्डर. ओके, हेनरी फेवल्स प्रिंसिपल कि बाबा देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस. तो उसी तरह इधर कुछ ऑर्डर नहीं, एवरीथिंग इज तितर बितर. देन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रपोज डिविडेंड, हमने शेयर होल्डर्स को वादा किया, टेंशन मत लो आपको डिविडेंड मिलेगा, इट्स अ करंट लाइबिलिटी क्विक. एडवांस टैक्स, देखो टैक्स दे दोगे ना तो गवर्नमेंट तो कभी पैसा देगी नहीं तुमको. हाँ, गवर्नमेंट को जो आपको हेल्प आउट करना है वो करेगी, तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो इज नॉन क्विक. बिल पेएबल इज क्विक. हाँ, डू रिमेंबर व्हेन आई से एडवांस टैक्स वी पेड इट, तो इट्स अ करंट एसेट, इट्स नॉट अ लाइबिलिटी, इट्स एन एसेट. हाँ, बिल पेएबल इज अ करंट लाइबिलिटी. एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये लास्ट टाइम नहीं था बट ये आज है, ये लास्ट टाइम नहीं था बट ये आज है. अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो मैंने तो दिया शेयर होल्डर को, उसने लिया नहीं. क्यों नहीं लिया? उसका एड्रेस, घर का पत्ता, अकाउंट बंद हो गया, तो फिर हम कैसे देंगे? तो हमारे पास वापस से आ गया, तो वो अनक्लेम्ड है. वो जब भी आ जाएगा तो हम उसको दे देंगे. ओके, वी विल गिव इट टू हिम डेफिनेटली. सो ओके, so I just reduced the flash on me because I was looking too bright. So markings, the last one is current liability quick, are done. And again
after this for the next 10 minutes what I do, that's simple. This is very important. मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर आप कभी भी ड्राइव पे निकल रहे हो एंड यू डोंट नो किधर जाना है, यू पुट इट इन गूगल मैप्स एंड गूगल मैप शोज यू द मार्किंग, द एरो, इधर इधर इधर. तो रिपीट पहुंच जाओगे अगर एरो बराबर से फॉलो करोगे तो. ओके, राइट नाउ तो जो हम हमेशा सॉल्व करते हैं उसमें पहले मैं एडवांस में लिख लेता हूँ. नो, यू कैन राइट एवरीथिंग इन एडवांस, आप मत लिखो. मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, एक फोरसाइट के बाबा देखो, सोर्सेज आएगा, एप्लीकेशन आएगा, सोर्सेज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स आएगा, उसके बाद बोरोड फंड्स आएगा, एप्लीकेशन के अंदर फिक्स्ड एसेट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और वर्किंग कैपिटल आएगा, और फिर दोनों का टोटल, उसका टोटल फंड रेज्ड हो जाएगा और ये मेरे बगल में आ जाएगा टोटल फंड एम्प्लॉयड. ओके, दैट इज 1 + 2, दिस इज 1 + 2 + 3. दिस इज द ओवरव्यू. यू ओनली हैव टू राइट द फर्स्ट वन, क्योंकि उसके बाद कितने लाइन लगेंगे ते मला माहित नहीं. ओके, मराठी अगर आपको नहीं आता, मुझे भी नहीं पता, तो आप गाड़ी शुरू करो मेरे साथ में. हाँ, पहले क्या है, शेयर कैपिटल. इज देयर शेयर कैपिटल, तो है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल करके ऐसा है, देखो ना ऊपर 10 लाख रुपया. तो देखो मैं लिख लेता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख. ओके, डन. अगर 2-3 आए फिर 2-3 हमको ऐड करना पड़ेगा. रिजर्व एंड सरप्लस, तितर बितर. इस तरफ देखोगे तो आपको जनरल रिजर्व, थोड़ा नीचे आओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके अलावा डू यू सी एनी रिजर्व? आई डोंट सी. तो मुझे 2 लिखे, 2 नज़र आए तो मैं 2 लिख देता हूँ. 1 जनरल रिजर्व, 1 लाख, एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट ऐसे बोला, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है क्रेडिट जानना, बिकॉज इट कैन बी डेबिट ऑल्सो. सो 3,25,000. बी, डू यू हैव मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, झूठा एसेट. हाँ, तो है ना. देखो लास्ट आइटम लेफ्ट में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ, तो उसको फिक्टिशियस एसेट ही बोलते हैं. So you write that and then you put the number, you put the amount. When you say not yet written off का मतलब है still now उसको बैलेंस शीट में ही रखा है, उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, रिटर्न ऑफ नहीं किया. रिटर्न ऑफ मतलब माइनस करना. ओके, सो नाउ दिस इज C. तो शेयर होल्डर्स फंड्स इज A + B - C. A + B - C. वरना आप गलती से बच्चे क्या करते हैं ना, सब प्लस करते हैं. 13 lakhs. Then comes borrowed funds. ओके, तो borrowed funds में कौन आएगा? आपने कोई लोन लिया, बैंक लोन, डिबेंचर्स, ऊपर आपको दिखेगा डिबेंचर्स 3 लाख, तो लोन तो लिया है. ओके, सो शेयर होल्डर्स वॉज रोमन नंबर 1, borrowed fund is roman number 2. तो 1 + 2 is total funds raised 16 lakhs. that same 16 lakhs 5 मिनट बाद यहाँ पे आएगा. नहीं आएगा तो घपला है. ओके, मतलब कुछ गलती हो गया, मेरे से गलती हो गया क्योंकि मैंने ही सॉल्व किया है ये. हाँ, अभी फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल आएगा. टेंजिबल में क्या आएगा? प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, मोटर का है, देख लेते हो. ये ऐसे कैश बिल, क्रेडिटर, प्लांट, यस. then land and building, yes. then बस इतना ही, 2 है. like this you have to recheck and recheck and recheck. और if you have completed a item, आप उसको हमेशा ना डैश या टिक मार्क कर सकते हो. तो you know मैंने ये पढ़ लिया है, वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ये दोनों का आप अगर ऐड करोगे तो आपको टेंजिबल का टोटल आएगा, which is 13,50,000. intangible in this sum लास्ट 2 लेक्चर्स में था गुडविल, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, बट इट्स नॉट देयर इन दिस सम. ओके, देन व्हाट विल आई डू? देन मेरे ऊपर आपको A + B एंड इट्स द सेम आंसर 13,50,000. A + B 13,50,000. दिस इज टेंजिबल, दिस इज फिक्स्ड एसेट. देयर इज नो डिप्रिसिएशन. होता तो वो मैं माइनस करता. इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किधर है? long term investment 20,000. so marking, if it is done good, then your answer
99.99% until unless कैलसी कुछ गलती हो जाए आपको कभी रॉन्ग नहीं आएगा. वर्किंग कैपिटल, नाउ दिस इज वेयर द कॉम्प्लिकेशन, वेल कॉम्प्लिकेशन मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है. क्विक नॉन क्विक, क्विक नॉन क्विक, पहले करंट एसेट. और इन दिस सम तो थोड़ा ज़्यादा ही है क्योंकि मतलब सब तितर बितर है. ओके, कैश आएगा, बिल रिसीवेबल आएगा, ओके, फिर स्टॉक वो नॉन क्विक है, प्रीपेड वो नॉन क्विक है, डेटर वो क्विक है, एंड एडवांस टैक्स. सो मतलब इफ आई काउंट देयर वर अराउंड 7 आइटम्स. हाँ, तो देर इज अ लंबा लिस्ट. तो हल्ले हल्ले, धिम्मे धिम्मे. पहले कैश लिख लेते हैं. तो ऑर्डर अपने दिमाग में बना लेना. ओके, मेक द ऑर्डर इन योर माइंड. बिल रिसीवेबल 60,000 एंड डेटर 5 लाख. 3 क्विक एसेट, तीनों को ऐड करो. क्विक करंट एसेट 6,05,000. इसमें नॉन क्विक प्लस प्लस प्लस, मतलब जितने भी आते हैं, 2 बार आते तो 2 बार प्लस करो, 3 बार आते तो 3 बार प्लस करो. 2,75,000. प्रीपेड एक्सपेंसेस 60,000 एंड एडवांस टैक्स 1 लाख. सो many times होता क्या है ना, स्टूडेंट्स, ये अबाउ मी, they just add this plus plus plus, they forget the quick above. वो भूल जाओगे तो क्विकली सब मार्क्स चले जाएंगे. तो डोंट फॉरगेट दैट. सो टोटल करंट एसेट इज एवरीथिंग, सब ऐड कर लिया हमने. 10,40,000. ओके, सो यू हैड क्वाइट अ बिट ऑफ वेराइटी इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. गोइंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, काना का पे तो करंट लाइबिलिटी होगा. तो अगर मैं ऊपर से नज़र मारूँ, क्रेडिटर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट 2, इट्स नॉन क्विक. प्रोविजन फॉर टैक्स 3, प्रपोज डिविडेंड 4 क्विक है. बिल पेएबल एंड अनक्लेम, मतलब 6-7 तो मैंने यहाँ पे भी गिन लिए. हाँ, तो जितने करंट एसेट है ऑलमोस्ट उतने करंट लाइबिलिटी. सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं बाद में नॉन क्विक में लिख लूँगा. ओके, सो वी गो टू करंट लाइबिलिटी. द फर्स्ट वन, क्रेडिटर. क्विक में अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे करो तो इट्स फाइन. इफ़ यू से बट सर मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर लिखा, क्रेडिटर नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट नॉन क्विक के बाद मत लिखना, तो ऑर्डर एकदम ख़राब हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगी. क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, बिल पेएबल एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड. क्वाइट यूनिक ये प्रॉब्लम में है. ये सब क्विक क्विक क्विक, ये जैसे इनका जैसे शक्ल दिखेगा ना, आपको पैसे देने पड़ेंगे. ओके, बिकॉज वो वसूली करने ही आए हैं. सो क्विक करंट लाइबिलिटी 7,60,000. इसमें आप बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड कर लो, नहीं है तो वो करने की भी ज़रूरत नहीं है. हाँ, नाउ यू गेट टोटल करंट लाइबिलिटी. अगेन आई डू अंडरस्टैंड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस बीइंग अ स्विफ्ट लेक्चर. अपनी गाड़ी थोड़ी तेज़ जाती है, आप वेरी सिंपल पॉज कर सकते हो. और आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक यूट्यूब पे वो भी अवेलेबल है जहाँ पे लेक्चर एक थोड़े लेस स्पीड में चलता है. तो आप चाहो तो वो भी कर लो, आई डोंट माइंड. ओके, क्या तकलीफ है. वर्किंग कैपिटल इज TCA माइनस TCL, TCA माइनस TCL. 2,30,000. कभी कभी वो वर्किंग कैपिटल नेगेटिव भी आता है. चलो आज नहीं हुआ तो विल नॉट डिस्कस दैट. बट 1, 2 एंड 3 ये ऐड करोगे तो यू विल गेट टोटल फंड एम्प्लॉयड विच हैज़ टू मैच विद दिस 16 lakhs विच हैज़ बीन गिवन. एंड व्हेन यू डू दैट, अगर वो मैच नहीं होगा आपको आपके कैलसी पे भी नज़र आ जाएगा. अगेन लास्ट लेक्चर में एंड उसके पहले I've done a question which is in a balance sheet horizontal, then we convert it to vertical. Today there was no balance sheet, तो वो थोड़ा और अटपटा था. But always keep the format in front of you so that you know कि ये आइटम इधर का ये आइटम, क्योंकि इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और अगर मार्किंग में गलती करोगे तो कभी भी ये टोटल होने वाला नहीं है. हाँ, इसके बाद कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. करंट एसेट बताओ, फिक्स्ड एसेट बताओ. चलो यार, बताने में हमको क्या तकलीफ है, बता देते हैं. तो करंट एसेट अबाव इज 10,40,000, फिक्स्ड एसेट उसके ऊपर इज 13,50,000. हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो ऑलरेडी मेहनत कर ली है. अभी क्या है, अलग से परोस के देना है हम लोगों को. करंट लाइबिलिटी ये मेरे पीछे आएगा,
8,10,000. प्रोप्राइटरी फंड्स मतलब ओनर्स फंड्स, वो दिस चैप्टर नो इट हैज सो मेनी नेम्स टू वन आइटम दैट मेनी स्टूडेंट्स तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सो यू हैव 13 lakhs, 13 lakhs. क्विक एसेट, क्विक लाइबिलिटी, वो एक साथ में मैं नजर मान लेता हूँ. क्विक एसेट इज अबाउ 6,05,000. क्विक लाइबिलिटी इज लिटिल डाउन 7,60,000. Let me fill it. And that's it as far as this specific solution is concerned. I'll do my best to give as much as practice as is possible. Okay, ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट वर्टिकल बैलेंस शीट खत्म नहीं होता. जब मैं नेक्स्ट में जाऊंगा समथिंग कॉल्ड एज कॉमन साइज, मैं तो भी वर्टिकल करूंगा. So don't worry, we are still going to continue and there will be as many lectures as possible which will give you as much as practice that is required. अगर आपको जितना कुछ मैंने बताया, मैं मेरे पोजीशन को पहले बदल देता हूँ और आपको वो सारा कुछ समझ में आ गया, देन कृपया करके आप लेक्चर को लाइक कर दीजिए. अगर आप डिसलाइक करते हो तो कोई तकलीफ नहीं है, आप उसकी वजह कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए. ओके, हाँ, उसके अलावा कोई रिक्वेस्ट है, कोई सजेशन है, कोई कंप्लेंट है, आप कंप्लेंट बॉक्स में, या कोई डाउट है जो पढ़ाया उसके कनेक्शन में, आप वो भी लिख सकते हो. सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक हमारे चैनल और हमारे चैनल के टीचिंग की जानकारी जल्द से जल्द कृपया करके पहुंचा दीजिए. ओके, it was amazing teaching you and I hope the pleasure always continues. Okay, have a wonderful day ahead. बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. जितना हो सके stay indoors, जितना हो सके stay safe. वो actually जितना हो सके stay safe always. Okay, good day to all of you. God bless. जल्दी मिलते हैं. Bye for now.